Thank you. So today we will, good afternoon to all of you. Are you listening and seeing the slide? चलिए, इको हो रहा है कुछ, कोई बात नहीं. Today we will see the last exercise of your course outline, that is the drought animal power. The basic thing is that 50-60 years ago, our country is considered as an agriculturist country, where the basic business of the people is the agriculture. And for doing the agriculture, people are mostly depend upon the bullock. All the operation in the agriculture has been performed by the bullock, whether it is plowing, harrowing, disc running, or seeding on the ground, or in the transportation of the animal, the bullock cart is frequently used. Right? Similarly, in the city area, the horses are used for going from one place to another place. Horse cart, घोड़ा गाड़ी चलती थी पहले, ठीक बैलगाड़ियों से सामान एक जगह से दूसरी जगह डलता था. खेती का पूरा काम जो है बुलक के द्वारा होता था. Even see that in Assam side, जहाँ पर की जो है in forest, the big trees are cut and transport from one place to another by the elephant, catching the long stem of the tree in their snout and move from one place to another. That work is still performed in the northeast area of the country. But for doing this work, how much power of the animal is used? Today we will discuss the same thing. So what is drought animals? That work with and for humans. With and for humans. किसके साथ? आदमी के साथ. किसके लिए? For humans, for subsistence. Subsistence उसकी सहायता के लिए and livelihood. Subsistence and livelihood. The most commonly thought of the drought animals are horse, donkey, mules, camel, and llamas. These are the animals which are generally used for the well-being of the human being. Donkey, you see previously, are used to transport the goods from one place to another place. It is the best available example is the transport of the sand from the river to the constructed area. Transport of the bricks from outside to the long distance for making home. So when the bullock cart is not there. So these are the animals, the mules. Similarly, in the army, still till now, the mules are used for transportation of the feed material from one place to another in the hilly area. Leh, Ladakh, तिब्बत, जम्मू एंड कश्मीर में अभी भी खच्चर जो है आर्मी में पाले जाते हैं कि सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाए.
Camels in Rajasthan are frequently used. Till now, there is camel cart. घोड़ा ऊंट गाड़ी होती है जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है. Transportation of the goods is also done by the camel cart. ठीक. But animals such as water buffalo, sheep, goat, elephant, pig and dogs also work with and for the human being. ये जो एनिमल हैं जिनको अपन डोमेस्टिकेटेड एनिमल कहते हैं उनको भी जो है बफेलो, सीप, गोट, एलिफेंट, पिग्स एंड डॉग्स. डॉग भी जो है रेंडियर एक स्पीसीज आपने सुनी होगी, वो जो है एक जगह से दूसरी जगह सामान को शिफ्ट करने में उपयोग होती है. एंड फॉर ह्यूमंस एंड विथ ए क्लासिफाइड एंड दे हैव बीन क्लासिफाइड अंडर द ड्रॉट एनिमल्स. ए वर्किंग एनिमल इज एन एनिमल यूजुअली डोमेस्टिकेटेड. जितने भी वर्किंग एनिमल हैं वो डोमेस्टिकेट किए जाते हैं, मतलब पाले जाते हैं. एंड ट्रेंड टू परफॉर्म टास्क. जैसे कि आप बुलक कार्ट में आप देखें इतना ट्रेंड होता है बुल कि उसका मालिक आवाज लगाता है तो वो अपने हाथ खुद गाड़ी का जो अगला हिस्सा होता है उठा करके अपने कंधे पर रख लेता है. आपने कई दफे देखा होगा. इस तरीके से उनकी ट्रेनिंग परफॉर्म की जाती है. अगर आप कुछ भी का आवाज दें वो नहीं रुकेगा. यदि उसका मालिक उसको आवाज देगा अपनी भाषा में तो वो वहीं खड़ा हो जाता है जानवर. इस तरीके से उनको बिफोर स्टार्ट ऑफ द वर्क द एनिमल्स आर ट्रेंड फॉर दिस पर्पस. हॉर्सेस के केस में भी ऐसा ही है. आपने देखा हो कभी कभी तांगे वाला जो है वो आवाज लगाता है और घोड़ा चलने लगता है, आवाज लगाता है घोड़ा रुक जाता है. इस तरीके से जो है ट्रेनिंग इन डोमेस्टिकेटेड एनिमल की परफॉर्म की जाती है. दे में बी क्लोज मेंबर्स ऑफ द फैमिली, और घर के एक सदस्य के जैसे ट्रीट किए जाते हैं. सच एज ए गाइड और सर्विस डॉग्स, और दे मे बी एनिमल्स ट्रेंड स्ट्रिक्टली टू परफॉर्म ए जॉब सच एज लॉगिंग एलिफेंट्स. मैंने आपको बताया लॉगिंग मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ द बिग ट्रीज फ्रॉम कट ट्रीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जिनको कहते हैं बड़े बड़े लट्ठे. आसाम में जो है नदी के किनारे एक जगह से दूसरी जगह इन एलिफेंट्स के द्वारा किए जाते हैं. दे मे आल्सो बी यूज्ड फॉर द मिल्क, ए जॉब दैट रिक्वायर्स ह्यूमन ट्रेनिंग टू एनकरेज द एनिमल्स टू कोऑपरेट. क्या सम एट द एंड ऑफ देयर वर्किंग लाइव्स मे आल्सो बी यूज्ड फॉर द मीट पर्पस. और कुछ जानवर जो हैं जैसे कि आपने सुना हो कहीं कहीं पर डॉग मीट कंज्यूम करते हैं. नॉर्थ ईस्ट में जो है और जो आपको जो है उनका कुछ दिनों तक उपयोग करने के बाद उनको मीट पर्पस से उपयोग कर लेते हैं. और अदर प्रोडक्ट सच एज लेदर, जैसे कि कैमल के केस में है. क्या कैमल लेदर इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली. बुलक के केस में है बुल इज आफ्टर स्लॉटर द लेदर इज यूज्ड. Such animals are sometimes called as a draft animal or the breast of the burden. ये नया नाम है जो कि ड्राफ्ट एनिमल के ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको पूछा जा सकता है. बीस्ट ऑफ द बर्डन जो है अदर नेम इज ड्राफ्ट एनिमल्स. नाउ द डेफिनेशन ऑफ द ड्राफ्ट मीन्स वर्क, एबिलिटी मीन्स capacity. So working capacity of the animal is known as draftability of the animals. Right? इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है. Capacity to work is known as draftability. Work in the strict sense of the force into distance. वो कितना फोर्स लगाता है और कितनी दूर चलता है, that is considered as work. Through which the force is moved. Force into distance through which the force is moved. कोई भी वजन जब अपन जानवर के ऊपर रखते हैं तो वह उसको लेके कितनी दूर चलता है उससे उसकी ड्राफ्टेबिलिटी का मेजरमेंट किया जाता है. इज डन बाय द एनिमल ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस लाइक वॉकिंग अपहिल, ऊंचाई पर चढ़ना, या पुलिंग अगेंस्ट सम एक्सटर्नल फोर्स. पुलिंग अगेंस्ट सम एक्सटर्नल फोर्स जैसे बुलक कार्ट होता है. बुलक कार्ट में आप वजन रख देते हैं, वजन रखने के बाद जब उसमें बुल लगाते हैं हम तो वह थोड़ी दूर तक उसको लेकर चलता है. एक बुलक कार्ट से एक जानवर 8 से 10 किलोमीटर प्रतिदिन की दूरी तय कर सकता है. राइट. अब इसी प्रकार हॉर्स कार्ट भी होते हैं. घोड़ा गाड़ी जो होती है उसमें आप देखो पहले के समय में
जो यूपी के लोग हैं लखनऊ वगैरह में, बल्कि देश के दूसरे भागों में भी, जिसको बोलते हैं तांगा, तांगा बहुत ज्यादा जो है उपयोग में होते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने में। भारतीय संस्कृति में नवाबों का प्रिय वाहन हुआ करता था ये, जिसमें कि घोड़े पर वो सवारी करते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। उसमें क्या होता है कि बाहरी फोर्स, जो तांगे पे बैठे हुए लोग हैं, उनका वजन कितना है और उसको जानवर कितनी दूर तक ले जाता है, इससे however the term work has a more practical definition in case of animals drought. It consists of all the activities which require an increase in energy expenditure. अगर साइंटिफिक शब्दों में कहा जाए तो व्हाट इज वर्क? इट इज एन इंक्रीज इन द एनर्जी एक्सपेंडिचर। ऊर्जा का जितना ज्यादा प्रवाह उसके द्वारा किया जाएगा, उसको ही और उससे जो कार्य होगा, ऊर्जा के प्रवाहमान करने से जो कार्य होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज वर्क। Walking unloaded has been estimated the net energy cost of walking। किसकी अलग अलग केस में कैसे मेजर की जाती है? इट इज मेजर्ड एस्टिमेटेड टू बी सिंपल वॉक यदि कंडीशन करता है जानवर तो 2 joules पर केजी बॉडी वेट पर मीटर इन कैटल एंड बफेलो। वॉकिंग अनलोडेड एनिमल मतलब कोई लोड उसके ऊपर नहीं है, स्वयं अपने आप से चल रहा है, तो जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो जोल में नापी जाती है। एक जानवर की जो है 2 joule पर केजी बॉडी वेट पर मीटर। ऑब्जेक्टिव टाइप जैसे मल्टीपल चॉइस आपको अभी एग्जाम में दिए जाएंगे 2, 4, 6 और 8। क्या? वॉकिंग अनलोडेड एस्टिमेट एनर्जी कास्ट ऑफ वॉकिंग अनलोडेड एनिमल। अब 2, 4, 6, 8 आपको ऑप्शन दे दिए, सही ऑप्शन आपको चुनना है। वर्क इज डन व्हेन फोर्स इज एक्सटेंडेड, या दूसरी भाषा में आप कर सकते हो नॉट एक्सटेंडेड। वर्क इज डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू मूव एन ऑब्जेक्ट ओवर ए डिस्टेंस। Work is done when force is exerted, exerted to move an object over a distance. Energy cost of walking uphill has found to be 26.82 joule per kg body weight per meter ascended। मतलब जब ऊंचाई पे चढ़ने पर जानवर हो तो उसका जो है पर मीटर में 26.82 जूल पर केजी बॉडी वेट मापा जाता है। थॉमस एंड पियर्सन 1986 में इन्होंने इसको कैलकुलेट करके बताया। joules and buffalo expend 4 joules for carrying 1 kg load over 1 meter। ऊपर आपको बताया 2 joule यहाँ पर, जबकि अनलोडेड है, वॉकिंग अनलोडेड एनिमल, और यदि 1 kg लोड करेंगे तो एनर्जी कितनी लगेगी? 3 joules in case of cattle and buffalo में 5 joules for carrying 1 kg of load over 1 meter। The work performance of the animals can be measured by quantifying their capacity to generate power। ये important है। The work performance of animal can be measured by quantifying, मतलब उसकी गणना कैसे करेंगे? Their capacity to generate power, उनकी क्षमता कितनी है पावर जनरेट करने की। सोर्स generates a little more power than that is actually measured as tractive power because part of it is used in the cell population। अपन ये जो गणना करते हैं उन्होंने कितनी दूरी तक उस सामान को खींचा, यह उनकी एक्चुअल क्षमता से ज्यादा होता है। इसलिए ज्यादा क्षमता होता है कि उनको सामान उठाने के साथ साथ अपनी बॉडी को भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जिसमें भी कुछ एनर्जी लगती है। इसीलिए इसको पूरा ध्यान से पढ़ देखिएगा आप। The work performance of the animals can be measured by quantifying their capacity to generate power। Source generates a little more power than what is actually measured as tractive power because part of it is used in the self propulsion। कुछ अपने शरीर को भी एक जगह से दूसरी जगह हिलाने में भी ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए जो हम मेजरमेंट करते हैं वह उससे ज्यादा होता है। The tractive power measured in watts is the rate at which work is performed। एक्चुअल में क्या है, किलोवाट में उपयोग करते हैं, और 1 किलोवाट इज इक्वल टू
760 watt. So the tractive power, जो फोर्स है वो काय में मेजर किया जाता है, वाट में. Is measured in watt and is the rate at which the work is performed and is calculated from the formula. नीचे लिखे पावर से ट्रैक्टिव पावर मतलब कितना खींचा गया पावर है वो है ड्रॉट इनटू स्पीड मीटर पर सेकंड कितनी रही. इसके आधार पर इस फार्मूला से आप किसी भी जानवर की ट्रैक्टिव पावर ज्ञात कर सकते हैं. टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड, वर्क आउटपुट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बाय द टोटल अमाउंट ऑफ द एनर्जी डिलीवर्ड बाय द एनिमल्स टू अकम्प्लिश ए पर्टिकुलर टास्क. टोटल एनर्जी जानवर ने एक कार्य को करने में कितनी लगाई, इसलिए यहाँ पर ऊपर जो फार्मूला है इसमें दिया है मीटर डिस्टेंस, मीटर पर सेकंड, कितने मीटर एक समय निश्चित समय में जानवर के द्वारा चला गया, उसके द्वारा उसकी वर्क आउटपुट कैलकुलेट की जाती है. इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ किलोवाट आवर्स. मैंने आपको बताया इसकी यूनिट है किलोवाट आवर्स. द ड्राफ्ट कंपोनेंट ऑफ पुल इज ऑफ द मोस्ट इंटरेस्ट टू पर्सन कंसर्न with an animal's traction because it determines the design of the implement and the feasibility of the using them in a given condition. अब जो है जो किलोवाट पावर क्षमता हमें जानवर की इसलिए ज्ञात होना चाहिए कि हम जो भी इंस्ट्रूमेंट जानवर के लिए डिजाइन करते हैं उसमें कितना पावर लगेगा उस हिसाब से और कितना पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा जो कि सामान को खींचने में लगेगा और कितना पावर जानवर को खुद को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में लगेगा. इसीलिए द ड्राफ्ट कंपोनेंट ऑफ द पुल इज ऑफ द मोस्ट इंटरेस्ट टू द पर्सन कंसर्न. जो रिसर्च वर्कर होते हैं जो गाड़ियां डिजाइन करते हैं, डिस्क हैरो वगैरह जब चलाने के लिए लगते हैं, बुलक कार्ट डिजाइन करते हैं विद एनिमल्स ट्रैक्शन बिकॉज इट डिटरमाइंस द डिजाइन ऑफ द इम्प्लीमेंट एंड द फिजिबिलिटी ऑफ द यूजिंग देम इन ए गिवन कंडीशन. एक निश्चित कंडीशन में, जैसे कि बैलगाड़ी अगर सड़क पर चलती है तो उसकी डिजाइन में जो पावर लगेगा वो जानवर के द्वारा वह अलग होगा और वही कहीं कैमल के द्वारा गाड़ी चलाई जाए कहाँ पर रेगिस्तान पे तो वहां पर कंडीशन अलग होगी. तो वहां पर जो वर्क फोर्स निकाला जाएगा कैमल का वो अलग होगा एक एज कंपेयर टू बुलक के वर्क फोर्स की तुलना में. एप्लीकेशन for pulling a particular implement depends on the several factor. जो एप्लीकेशन मैंने आपको बताया कि बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, जगह, स्थिति, परिस्थिति, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फिर उसके बाद जो है ग्राउंड, किस जगह पे आपको चलाना है जानवर, उस जगह के हिसाब से जो है ड्राफ्ट पावर को कैलकुलेट किया जाता है. द इम्प्लीमेंट फैक्टर्स आर द एनिमल, इसमें देखिए इम्प्लीमेंट फैक्टर आर एनिमल ब्रीड, हेल्थ ऑफ द एनिमल, बॉडी वेट ऑफ द एनिमल, मेथड ऑफ द हार्नेस. हार्नेस मीन्स किस तरीके से इसको ऊपर रखा जा रहा है. जैसे बुलक में जो है हम्प के आगे जो गर्दन का हिस्सा होता है उस पर आप देखेंगे कि हल्का लकड़ी रखी जाती है, जबकि कैमल कार्ट में जो है बुई उसका जो ऊपर हम्प होता है उसके आगे जो है एक लकड़ी जैसा होता है, हार्नेस कहलाता है. और ट्रेनिंग एंड फील्ड वर्किंग कंडीशन, फील्ड वर्किंग कंडीशन मैंने बताया कि रोड पे चल रहे हैं तो अलग प्रेशर लगेगा और वही एनिमल जब रेत पर चलेगा तो उसका अलग प्रेशर अप्लाई होगा. तो इसलिए जो है जो भी इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया जाता है इनके लिए, चाहे वो गाड़ी हो, घोड़ा हो या खेत में चलने वाले दूसरे प्रकार के इम्प्लीमेंट हो, जैसे सीड ड्रिलर है, सीड जिससे कि सीड की सोइंग की जाती है, डिस्क हैरो है, ये सब जो है इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि जानवर को कंफर्ट रहे और उसके फोर्स का पूरा उपयोग हो. द हॉर्स पावर डेवलप्ड बाय साहिवाल कैटल, साहिवाल जो है बुलक जो है वाइल यूजिंग 3 एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, अलग अलग इम्प्लीमेंट में अलग अलग जो है हॉर्स पावर लगता है. जैसे डिस्क प्लाऊ में 0.84 हॉर्स पावर, डिस्क हैरो में 0.63 हॉर्स पावर एंड कल्टीवेटर यदि चलाएंगे तो 0.70 हॉर्स पावर लगेगा एक बुल के द्वारा. तो ऐसा है जो इंस्ट्रूमेंट की डिजाइन के आधार पर भी हॉर्स पावर जानवर के द्वारा लगाया जाता है.
द ट्रैक्टिव फोर्स मतलब खींचने की क्षमता प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सन बेल के द्वारा इज लार्जली डिपेंड ऑन द बॉडी वेट इन लार्ज फॉर्म 10 to 14% ऑफ देयर बॉडी वेट। अब जो पावर प्रोड्यूस होता है, ट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस होता है, वह 10 to 14% ऑफ द बॉडी वेट होता है। म्यूल्स के केस में 10 से 16% ऑफ द बॉडी वेट होता है। एलिफेंट के केस इसलिए 7% ऑफ द बॉडी वेट होता है। ऑन एन एवरेज द हरियाणा बुलक्स प्रोड्यूस ए हायर हॉर्स पावर देन द क्रॉसबर्ड। क्रॉसबर्ड की तुलना में हरियाणा बुल ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, जैसे कि 0.52 हॉर्स पावर इन केस ऑफ हरियाणा बुलक, और उसके जो है क्रॉसबर्ड में जो है पावर जो है कुल 0.44 हॉर्स पावर होता है। इन प्रैक्टिस द वर्किंग रेंज ऑफ द स्पीड ऑफ द वॉकिंग ऑफ द ड्राफ्ट कैटल, वर्किंग रेंज मीन्स स्पीड ऑफ द वॉकिंग ड्राफ्ट कैटल एंड बफेलो इज नियरली नैरो। क्या इनकी जो है वॉकिंग क्षमता जो है 0.5 से 1.2 मीटर पर सेकंड होती है, विथ ए मीन मतलब 1 मीटर पर सेकंड की वॉकिंग क्षमता होती है विदाउट एनी लोड, और जब लोड रख देंगे ज्यादा होगी। वहीं साहिवाल बुलक की डिस्क फ्लोइंग क्षमता 2.21 किलोमीटर पर सेकंड होगी। हैरोइंग एग्रीकल्चर का ऑपरेशन होता है। टिलिंग जमीन को पलटना, हैरोइंग में 1.98 और टिलिंग में 2. टिलेज एक ऑपरेशन होता है 2.21.9 per second. In this way, we have seen the different adaptability of the animal and their capacity to move the place from one place to another. अब इतने बताने के बाद एक अगली एक्सरसाइज और है आपके कोर्स में कि मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एट द फार्म। इसी में लेबर मैनेजमेंट, ठीक, उसको जो है आपको मैंने कल आपको बताया कि NDBSU की वेबसाइट में लेबर मैनेजमेंट के बारे में डॉक्टर संदीप नानावटी ने एक आर्टिकल लिखा हुआ है। कुछ पूछ रहे हैं क्या? और ये भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। NDBSU की वेबसाइट खोलेंगे, उसमें एक लेक्चर पूरा दिया हुआ है। अगला जो है मैनेजमेंट ऑफ कैटल एंड बफेलो एट द फार्म। अगर मैनेजमेंट हम कैटल एंड बफेलो रखते हैं तो कौन कौन से रूटीन मैनेजमेंट की प्रैक्टिस है, उसमें नंबर 1 है कैस्ट्रेशन करना। कैस्ट्रेशन करना जो है, कैस्ट्रेशन हेल्प्स टू मेक द एनिमल डोसाइल एंड ट्रैक्टेबल। मतलब यदि आपको जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बुल एंड बुलक, एक क्वेश्चन एक आता है, तो बुल इज द मेल ऑफ द कैटल which is used for the breeding purpose and bullock is the castrated male of the cattle which is used for the plowing purpose or for the tractable purpose. Both cattle and buffalo are generally castrated at about 1.5 to 2 years of age before pulling them to work. उनको वर्क पर लाने के पहले 1.5 से 2 साल पहले उनको हम कैस्ट्रेट कर देते हैं, इससे उनकी वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। टू अर्ली कैस्ट्रेशन और टू लेट कैस्ट्रेशन इज नॉट डिजायरेबल। बहुत जल्दी 6 महीने से 1 साल की उम्र में कैस्ट्रेशन करना और वहाँ 5 से 6 साल की उम्र में नॉट डिजायरेबल है। कैस्ट्रेशन यूजिंग ए बॉडीजो कैस्ट्रेटर इज रिकमेंडेड। एक मशीन होती है बॉडीजो कैस्ट्रेटर, जो जब आप कॉलेज आएंगे तब हम आपको दिखाएंगे। परंतु यदि आप नेट पर देखेंगे तो आपको इसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इस बॉडीजो कैस्ट्रेटर का उपयोग करके जानवर को 1.5 से 2 साल की उम्र में कैस्ट्रेट करते हैं। कैस्ट्रेट करने के पहले जानवर को जमीन पर गिराते हैं, जिसके लिए 2 कास्टिंग ऑफ द एनिमल आपको पता होनी चाहिए। एक कैस्ट्रेशन है, अगली चीज जो है वो है कास्टिंग ऑफ द एनिमल। अगर इसमें नहीं होगा तो मैं बताऊंगा आपका। दूसरा जो है, इन्हीं जानवरों को जब जो है मैनेजमेंट करने के लिए इनके पैर में स्विंग करते हैं। स्विंग में आपने देखा होगा गांव में, शहरों में घोड़े की नालबंदी करते हैं। दैट नालबंदी इज नोन एज स्विंग। ये क्यों करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसको? बैलों में भी यदि आप साप्ताहिक बाजार जो गांव में भरते हैं उसमें जाएंगे तो वहां देखेंगे कि बैलों को भी नाल पहनाई जाती है। नाल या स्विंग से कुछ फायदे हैं, जैसे बुलक्स दैट आर यूज्ड फॉर द रेगुलर कार्टिंग पर्पस।
should be invariably sewed to prevent the wear and tear of the hoof. उनका जो खुर होता है वो ज्यादा घिसे ना जमीन पर चलने पर, इसलिए उसके वियर एंड टीयर को रोकने के लिए जो है उसकी स्विंग करते हैं. द शू शुड बी फ्लैट एंड कवर द होल सोल. द शू शुड बी कवर द होल सोल and it should be flat in nature. The nails hole should be towards the outer edge. और इसको जो है शू उसके अंदर पैर के अंदर इसके लिए कुछ कीले लगाए जाते हैं. कीले इस तरीके से लगाए जाते हैं कि अंदर कहीं पर भी कार्टिलेज या मांस में न धंसे. वह जो है हुक के बाहर जो कार्टिलेज है वहां पर निकल आए और उससे जो है शू जो है पूरी तरह रुका हुआ रहता है. और क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिस करते हैं फार्म पर, या इनकी बुल एंड बुलक की वॉशिंग एंड ग्रूमिंग ऑफ द एनिमल. बुलक यूज्ड फॉर द रेगुलर वर्क शुड बी डेली वॉश्ड एंड ग्रूम. तो डेली वॉशिंग के लिए इनको करना चाहिए, नहलाना चाहिए और उनकी बॉडी को ग्रूमिंग करना चाहिए. इसके लिए रेडीमेड ग्रूमिंग ब्रश आते हैं जो कि बॉडी पर चलाने से उनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, उनके बाहर के एक्सटर्नल पैरासाइट अलग होते हैं, राइट. और स्किन में चमक आती है. द बेस्ट टाइम टू गिव ए बाथ इज द आफ्टरनून आवर्स व्हेन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज हाई. जनरली जानवरों को जो है बाथ जो है आफ्टरनून टाइम में देना चाहिए, जिनसे कि दोपहर की गर्मी से उनको छुटकारा मिल सके. If the animals are taken to a pond or the stream, the quality of the water being unsure, it is better to water them prior to that wholesome water. यदि आप कहीं तालाब या नदी में ले जा रहे हैं, वी आर नॉट श्योर कि उसकी पानी की क्वालिटी कैसी है, तो हमको कर्तव्य बनता है उनको ले जाने के पहले हमको वाटरिंग करा देना चाहिए, पानी पिला देना चाहिए, जिससे कि जानवर जब तालाब या नदी या झरने में जाए तो वहां पर यदि पानी किसी कारण से गंदा हो तो उस गंदा पानी का सेवन ना करें. तो होलसम एंड क्लीन वाटर पहले ही पिलाकर ले जाना चाहिए. इफ दे आर गिवन वाटर आफ्टर द वर्क, इट इज नेसेसरी टू गिव ए रेस्ट फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स बिफोर स्टार्टिंग द बाथ. यदि मान लो हम ऐसी जगह पे ले जा रहे हैं काम के बाद, तो नेचुरली पानी की प्यास लगेगी, तो जानवर जो पानी उपलब्ध है वही पी लेता है. इसलिए पानी की क्वालिटी एश्योर कर लेना चाहिए कि उसमें जो है शुद्ध होलसम वाटर जो पिला करके ही ले जाना चाहिए. Be taken to see that mud is not caked in the between the hoofs or the shoe and hoop. शू एंड हुक के बीच में, नीचे आप जो जूता लगा रहे हैं उसके बीच में खाली जगह नहीं होना चाहिए, जिसमें कीचड़ नहीं लगा होना चाहिए, अदरवाइज पैर जो है कुछ दिनों में जख्म हो जाता है और नुकसानदायक होता है. रेगुलर ग्रूमिंग विथ ए ब्रश, इसके लिए रेडीमेड बाजार में ग्रूमिंग ब्रश आते हैं कैटल के, उनसे आप ब्रशिंग कर सकते हैं. इज एसेंशियल टू कंट्रोल पैरासाइट्स लाइक टिक्स and mites as well as to stimulate the circulation of the skin. मैंने आपको बताया कि ग्रूमिंग से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है हम और स्किन में चमक आ जाती है और जानवर के शरीर पर जो एक्सटर्नल पैरासाइट लगे रहते हैं वह जाते हैं. हेल्थ केयर, बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क ड्राउट बुलक्स आर प्रोन टू फिजिकल स्ट्रेस एंड ऑक्यूपेशनल इंजरीज. इन एडिशन दे आर susceptible to common disease of the bovine. Bovine की जो common disease हैं उनसे वो ग्रसित हो सकते हैं. The types of injuries commonly encountered in working bullocks include bruises and open wounds. ये जो है open wound बन जाते हैं बॉडी पे, caused by hitting or whipping and undue pulling on the nose rope. जो नाक पर जो एक लगा देते हैं, नथना बांधते हैं, नथनी. सोर मीन्स कहीं कहीं पर जख्म हो जाते हैं. सोर काज्ड बाय द बैडली फिटिंग, यदि फिटिंग हमारी अच्छी नहीं है हार्नेस की तो वहां पर जख्म हो जाता है. सोर काज्ड बाय द बैडली फिटिंग हार्नेस एंड योक्स, कंफ्यूजन
passed by the stones are the dried and hardened mud stuck in the cleft of the hoofs. तो पैरों के बीच में जो जगह होती है, क्लेफ्ट होता है, उसमें किसी प्रकार का कीचड़, गोबर इत्यादि नहीं जमा होना देना चाहिए। तो स्विंग के समय जो है हम इसको सबको साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, और शू मस्ट बी फिटेड इन द हूफ। इतना ध्यान रखना चाहिए कि उसमें प्रॉपरली फिटिंग हो। यदि मान लो उसमें इरिटेशन का किसी कारण से चोट लग गई और इरिटेशन काज कर रहा, तो एनिमल जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, सीधे खड़े नहीं होता है क्या, और समटाइम्स जो है अगर हेड रूट्स वगैरह जो है उसको डिस्टर्ब करता है और उनको हार्ट कैंसर होने की संभावना रहती है। अनइक्वल पेनिंग, पैरों में दर्द, इल फिटिंग योक्स, वर्किंग लॉन्ग आवर्स, फोर्सिंग द एनिमल टू पुल लोड्स बियॉन्ड देयर कैपेसिटी। ये भी नहीं करना चाहिए कि उनकी क्षमता से ज्यादा लाद दिया बैलगाड़ी में और अब वो खींच रहे हैं, तो ऐसा जानवर भी कुछ दिनों बाद खत्म हो जाता है। केयरलेस प्लोइंग एंड सैडिस्टिक बीटिंग and putting and ritual branding and some of the reasons of the injury। ये कुछ कारण हैं जिनसे जो है इंजरी होती है। Dogs are usually trained to work। किस एज को उनको वो करना चाहिए, that is 3 years of age में हमको ट्रेनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। Faster growth by the better feeding can make the animals attain the body size or work at an early age। यदि आप खान पीन अच्छा करेंगे तो जैसा कि अपन ने हीपर के केस में देखा, जल्दी मैच्योरिटी हो जाती है, वैसे ही जानवर को यदि हम खान पान अच्छा रखेंगे तो 3 साल से पहले भी उसकी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग डिपेंड्स अपॉन द स्पीसीज एंड टाइप ऑफ एनिमल, टाइप ऑफ वर्क एंड टेम्परेचर ऑफ द एनिमल। इन चीजों को उसका ट्रेनिंग डिपेंड करता है। स्टेज 1, टीच द बुलक टू एक्सेप्ट द योक। योक मीन्स जो कंधे पर रखा जाता है ना, हल, उसको जो है हल को रखने की क्षमता डेवलप करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे ट्रेनिंग देते हैं। शुरू में जब आप रखते हैं तो वो काफी रिएक्ट करता है, तो एक ट्रेंड बोल्ट बाजू में करते हैं और दूसरा अनट्रेंड, इस तरीके से उनकी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। स्टेज 2, बाग द बुलक्स विद द योक। फिर थोड़ी देर उसको चलाते हैं। दे मे बी टॉट टू रिस्पॉन्ड टू वॉइस कमांड। मैंने आपको बताया कि आवाज पर जानवर चलना चाहिए, जो मालिक या ओनर होता है उसकी आवाज जानवर चलना चाहिए। इसके लिए धीरे धीरे जानवर को ट्रेनिंग देते हैं। स्टेज 3, अटैच द प्लाउ टू द योक। अब योक जो है उससे प्लाउ को अटैच करते हैं एंड वॉक थ्रू द ड्राई फील्ड विदाउट एक्चुअली अप्लाइंग द प्लाउ टू द ग्राउंड। शुरू में आप सिर्फ सादे ही चलाएं जानवर को, क्या योक जो होता है उसके ऊपर जो आप प्लाउ के डंडा रखते हैं उसके कारण जानवर कभी कभी इरिटेट होता है, तो प्लाउ को आराम से रख के कुछ दिन ट्रेनिंग चाहिए। बाग द बुलक्स बिहाइंड ए ट्रेंड पेयर विथ एक्चुअली अप्लाइंग द प्लाउ। आपका जो पेयर है उसको जो है उसके आगे ट्रेंड पेयर होना चाहिए, जिसके कारण कि जानवर फिर ज्यादा मूवमेंट नहीं करता है। Once a pair is trained for plowing, it is easy to train them for carting. Before actually hitching to the cart, the pair should be yoked and walked along the road behind a cart. ये तो ट्रेनिंग का एक पार्ट है, कैसे उसको ट्रेन करना है। Once training is over, the bullock should be put to the occasionally light work। शुरू में जो है हल्का काम लेना चाहिए, so that the animals do not lose the practice। So this is all about the training of the animal which has been put to work for the work। NDVSU की वेबसाइट से देख लीजिएगा, वो है लेबर मैनेजमेंट। यहाँ लेबर मैनेजमेंट के बारे में आपको क्लियर कर दूं कि कहीं किसी भी कार्य का, चाहे वो मानसिक हो शारीरिक कार्य, जिसके लिए कि कोई भी राशि वो की जाती है, व्यय की जाती है, वह लेबर कहलाता है। अब जब हम डेयरी फार्म पर लेबर की बात करते हैं तो वहां पर 2 प्रकार के लेबर होते हैं, एक स्थायी लेबर, एक होते हैं अस्थायी लेबर। स्थायी मीन्स परमानेंट इन नेचर, अस्थायी मीन्स टेम्परेरी इन नेचर। स्थायी नेचर में मैनेजर हैं, सुपरवाइजर वगैरह आते हैं, जबकि अस्थायी लेबर में
दैनिक वेतन भोगी, स्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड वर्कर ये आते हैं। ये वर्कर भी जो है को या तो मासिक बेसिस पर रखा जाता है या दैनिक वेतन भोगी पर रखा जाता है। इन जानवरों, इन लेबर को क्या क्या सुविधाएं किसी प्रक्षेत्र पर मिलना चाहिए वो हमें ध्यान रखना है, और उसके हिसाब से जो है लेबर का पेमेंट होता है। ये पूरी एक्सरसाइज जो है इसी में एनडीबीएसयू की वेबसाइट में दी हुई है, उसको आप देख लीजिएगा। और इसके बाद अब आप लगभग मैंने सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं। जो चैप्टर कवर नहीं हुए हैं वो आपको एक एनडीबीएसयू की वेबसाइट पे मिलेंगे। दूसरी वेबसाइट एक है तनुवास यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भी बहुत सारे सुंदर सुंदर आर्टिकल दिए हुए हैं। मैंने आपको जो मैनुअल दिया है उसमें बहुत सारा कोर्स मैंने कवर कर लिया है। इसके आधार पर आपका पेपर बनेगा और आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, जो कि संभवतः 2 जून को है। ठीक है, यस सर। अब आप एग्जाम की तैयारी करिएगा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और एग्जाम का पैटर्न मैडम ने आपको बता दिया होगा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। अभी तीनों यूनिट को मिला के, पहली, तीसरी और पोल्ट्री वाली यूनिट को मिला के 16 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, 24 नंबर के रिटर्न आएंगे। रिटर्न और ऑब्जेक्टिव की कॉपी आपको स्कैन करके ईमेल तुरंत करना है आधा घंटे के अंदर। फिर उसके बाद जो है कोर्स टीचर की ईमेल पर, जिस पे आपको मिलेगा। फिर उसके बाद जो है आपको एग्जाम खत्म होने के बाद जो आपने कॉपियों में लिखा है उसको जो है तुरंत सीलबंद लिफाफे में रजिस्टर्ड पोस्ट से या कोरियर सर्विस से एनडीबीएसयू के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन तक पहुंचानी। पूछना है भाई किसी को कुछ? समाप्त करें? यस सर। है किसी को कोई जिज्ञासा जानने की? बोलो। व्हाट इज कोलेस्ट्रम? राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ कोलेस्ट्रम। ठीक। व्हाट आर द डिफरेंट मैनेजमेंटल प्रैक्टिस अडॉप्टेड एट द फार्म? इनुमरेट देन। जैसे अभी हमने आपको जो बताई, खाली बुलक पर भी नहीं है, कैटल वगैरह पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरी उसमें दिया हुआ है मैंने जो अक्सर मैनुअल है। What are the different managemental practice adopted at the farm? Describe any two. ठीक। Write down the care and management of the calf from birth to 6 months of age. Write down the care and management of cattle during, before and after calving. What is the difference between the cow and heifer? और जो भी इसमें आपको डेटा है वो डेटा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा सकते हैं। तैयारी तो बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। कोर्स 3 यूनिट हैं। 3 यूनिट को पढ़ने के लिए आपको 5 दिन का टाइम मिल रहा है। पढ़ के तैयार करिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मल्टीपल चॉइस आएगा तो 4 चॉइस में से सही बोलना पड़ेगा। जैसे आज ही मैंने आपको एक बताया कि 2 जूल पर केजी बॉडी वेट पर मीटर पावर होता है। अब ऐसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या इन्हीं में से बनेगा पेपर, कहीं बाहर से नहीं बनेगा। द अडल्ट फीमेल ऑफ द sheep is known as, define RAM, RAM, RAM। 5 डेफिनेशन पूछ लिए आपसे। What is castration? What is used in the castration of the animal? True or false? और कुछ? इसको पेपर मत समझ लेना, अभी बना नहीं है। और किसी को कोई जिज्ञासा? समाप्त करें, फिर अब अपन मिलेंगे एग्जाम के दिन। बीच में यदि किसी को कोई दिक्कत हो तो आपके पास टेलीफोन नंबर है, ग्रुप एडमिन के रूप में मेरा,
मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। 2 जून को समय पेपर का बता दिया गया, आपका जो नोटिफिकेशन निकला है उस पर आपको 10-15 मिनट पहले पेपर मिलेगा, क्या होगा वो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। अपना मोबाइल चार्ज करके रखें, कॉपी तैयार करके रखें, ठीक ना, ठीक है। यस सर। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, मेहनत करिएगा और डोंट ऐसा मत सोचिए कि वहीं बैठ के लिखना है तो नकल हो जाएगी। समय लिमिटेड है, क्वेश्चन बड़े होंगे और आप उसमें किसी प्रकार का नकल की गुंजाइश नहीं है। यदि करेंगे तो कॉपी आप यहाँ पहले भेजेंगे जब फोटो करके तो मिलाई जाएगी आपकी कॉपी से, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।